हियर इट इज टॉकिंग अबाउट टेम्पररी थिंग्स, राइट? जैसे हाँ, एक श्लोका है, सैटरडे को हमने देखा था क्लास में साई मंदिर में, याद है? तो कर्मण्ये वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यू आर आल्सो देयर, राइट? आप दोनों थे। सो उसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ। तो आप कर्म करना चाहिए बट रिजल्ट के प्रति अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, राइट? सो जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जो भी काम है जिसमें आपको रिजल्ट के प्रति अटैचमेंट है, आप बोल सकते हैं इट इज लाइक टेम्पररी थिंग, बिकॉज कभी ना कभी वो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, जो भी चीज है, बट दैट विल स्टॉप यू, दैट विल लिमिट यू फ्रॉम गेनिंग नॉलेज, यू कैन से लाइक दैट, राइट? तो ये पॉइंट मुझे इसलिए अच्छा लगा, मतलब हर चीज को आप परमानेंट बना सकते हैं, यू कैन डिराइव सम परमानेंट हैप्पीनेस फ्रॉम दैट, समझ रहे? इसलिए किसी एक काम को ये टेम्पररी है, परमानेंट है, हम फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं, राइट? इफ यू आर गेटिंग थ्रू द सेम एक्टिविटी सम नॉलेज यू आर गेटिंग, you can tell that it can keep you alive because knowledge is dynamic, it doesn't have limits, right? So he is able to tell that through music I am learning every time new things. Learning means he is not just talking about something he is gaining from the book only. Some jaise R Rahman, like these people na, they create something new, they created something, they did not use technology. jaise phone hai, हम यूज कर रहे हैं ना फोन को, so you will get tired after some time, but you are creating something means you are able to access that knowledge of this universe, this big universe. You will see lot of space is there and entire it is filled with knowledge. If you are able to poke into it with this small needle also, that knowledge which comes na, it keeps you alive, right? That satisfaction na, he could not agree that research is a temporary thing. You understood? Because he has that experience. That is what I'm saying, right? So in any field na, if you have this kind of experience, right, then definitely that keeps you alive. And how it will be alive for longer time and what are the other things we'll see. थोड़ा सा आइडिया तो आपको मिल गया, राइट? ये काफी अच्छा पॉइंट है जो समझ, मतलब एवरीवेयर ना, इफ यू आर with a fruitive mentality, you will not get satisfaction. चाहे जॉब हो या इवन फैमिली भी हो या कुछ भी हो, everywhere the search for knowledge need to be there because knowledge is dynamic. We are dynamic beings. जैसे आप बता रहे थे, एज के हिसाब से हमारा चेंज हो जाती है, right? We are not same. So obviously the thing which we get should also be dynamic. Then only both will be in synchrony, right? So that is one thing is knowledge. Beyond knowledge, one more thing is there, we'll talk about that later, but at least one thing is knowledge, right? So when you are getting that knowledge, that synchrony, it will keep you alive and stable, right? है ना, relative stability बोलते हैं, नहीं, relative speed is same. If you have same relative, both are in motion, you are also in motion, he is also in motion, but relative speed is same, so you are stable with respect to each other. So something like that. We have to, बहुत बार ना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए we want to be make our speed zero, right? But we cannot make our speed zero. We have to run because we are dynamic beings. We cannot sit idly. Our energy is there, it is telling you to do something. So if you can align that with the knowledge, then definitely that stability will be there. होता है ना, इनपुट एंड आउटपुट सेम है, सेम मतलब जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो देन यू विल बी स्टेबल, मेंटेन प्रॉपरली, समझ पा रहे ना? सो दिस इज बिकॉज सो फ्यू पीपल नो दैट द प्लेटफॉर्म फॉर रियल हैप्पीनेस इज बियॉन्ड टेम्पररी थिंग्स, राइट? बहुत बार हम आज सैटरडे रात को, फ्राइडे नाइट है, गेम खेलेंगे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे खेलेंगे, बट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, सुबह तक आ ही जाती है, फिर सो जाते हैं, दोपहर उठते हैं, कहीं ना कहीं ये फीलिंग होता है भाई आज का दिन बहुत बुरा गया, मतलब होता है ना, पूरा दिन सोए, खाना खाए, ये भी एक हैप्पीनेस है। एक जैसे 3 मोड्स होते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ गुडनेस, तो अलग अलग तरह का लेवल्स पे हैप्पीनेस होती है। तो आप सो के उठे हैं, हाँ अच्छा है, मतलब कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आराम है, ये है, बट कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ बोलती है भाई आज मैंने कुछ अचीव नहीं किया,
I did not achieve something today, तो that satisfaction will not be there. Sometimes we मतलब होता है ना, चुप करा देते हैं उस आवाज को, नहीं 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 जो हुआ वो सही हुआ, ऐसे बोल के आगे बढ़ जाते हैं, राइट. बट बार बार वो आवाज बोलती रहती है हमें, नहीं भाई कुछ और करना चाहिए. धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं. फ्रेंड को देखते वो तो काफी अच्छा अचीव कर रहा है, देन बोलेंगे हाँ नहीं मुझे भी ऐसे करना है. आई एम जस्ट शेयरिंग सम एक्सपीरियंसेस जो हमारे लाइफ में हो सकता है, राइट. सो हैप्पीनेस अलग अलग लेवल्स के होते हैं, बट व्हाट इज कंटिन्यूअस, व्हाट इज परमानेंट, दैट ओनली गिव परमानेंट सेटिस्फैक्शन. सो भगवत गीता में जो हैप्पीनेस के बारे में बताया गया, दैट इज रियल हैप्पीनेस, राइट. मतलब भगवत गीता डजंट डिस्कस अबाउट टेम्पररी थिंग्स, राइट. आप पूजा करो आपको स्वर्ग मिलेगा, या आप पूजा करो पढ़ाई अच्छा पढ़ाई हो जाएगा, जॉब मिल जाएगा. इट डजंट टॉक अबाउट दिस. इट टॉक्स अबाउट आत्मा. भगवान सेकंड चैप्टर में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में आत्मा के बारे में बोल देते हैं, राइट. सो आत्मा के बारे में बोल के हाउ आत्मा कैन बी नर्चर्ड मतलब नर्चरिंग होती है ना, खाने को क्या बोलते हैं, पोषण, नरिश्ड. हाउ आत्मा कैन बी नरिश्ड, व्हाट इज द नरिशमेंट फॉर द सोल. इट फोकसेस डायरेक्टली ऑन दैट, ठीक है. क्योंकि एक बार वो चीज स्टार्ट हो गया हमारे अंदर, तो जो हैप्पीनेस है ना वो अंदर से आ ही जाती है. आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो इनर्शिया तो रहेगी हमारे हैबिट्स का, बट व्हेन यू गिव दैट लिंक देन इट विल, वो तो बाहर आएगा. मतलब यू विल बी हैप्पी. जैसे सुबह उठते ही आपको हैप्पीनेस महसूस होगा. आपका फ्रेंड पूछेगा तो इतना हैप्पी क्यों है, पता नहीं, ऐसे हैप्पीनेस अंदर से आ रहा है बस. रूट कॉज पे काम. हाँ, रूट कॉज पे काम करना, ये भी बोल सकते हैं आप, राइट. हैप्पीनेस इज परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेस. सेंसेस क्या, कितने तरह के सेंसेस होते हैं हमारे बॉडी में? कितने सेंसेस हैं? 5 नॉलेज सेंसेस है, 5 वर्किंग सेंसेस है, पता ही है आपको. मोस्टली यहाँ पे नॉलेज सेंसेस के बारे में बात हो रहा है. हाँ, नाउ A stone, for instance, has no senses and cannot perceive happiness and distress. Yes, यहाँ से बहुत अच्छा रिलेट करते हैं आप लोग, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है. ए स्टोन पर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर सेंसेस नहीं है, सो इट कैनॉट परसीव हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, दोनों है. हैप्पीनेस नहीं है मतलब डिस्ट्रेस भी नहीं है, राइट. हाँ, नेक्स्ट. स्टोन से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, तो जितना ज़्यादा कॉन्शियसनेस डेवलप होगा उतना ज़्यादा आप हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को महसूस कर पाएंगे, हाँ, फील कर पाएंगे. तो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टोन इज ट्रीज. ट्रीज हैव कॉन्शियसनेस बट इट इज नॉट डेवलप्ड कॉन्शियसनेस. तो ट्रीज का हैप्पीनेस कैसे होती है, हाउ यू विल सेंस, यू कैन यू नो, आई थिंक ब्लूम करेगा, ग्रीनरी होती है, यू विल सेंस दैट. मतलब वो हमारे जैसे हंस नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, उछल नहीं सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, ब्लूम हो सकती है, राइट. सो थ्रू दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट हैज गॉट इट्स लाइफ. समझ रहे? जैसे आपको ये एक्सपेरिमेंट करता है जगदीश चंद्र बोस ना उसका नाम. तो जैसे एक प्लांट था, उसके बगल में एक रेडियो में म्यूजिक चला रहा था. अच्छा. जैसे म्यूजिक चला रहा था वो थोड़ा सा हिल रहा था. एक्चुअली ना, इन वन कॉन्सेप्ट इज देयर इन स्पिरिचुअलिटी, मतलब हमारे शास्त्रों में देयर आर 5 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. वन इज अन्नमया, प्राणमया, ज्ञानमया, विज्ञानमया, आनंदमया. तो ए ट्री ना एट मोस्ट इट कैन गो अप टू प्राणमया कॉन्शियसनेस. प्राणमया का मतलब क्या है? लाइफ एनर्जी. सो इट हैज लाइफ बट इट कैनॉट एक्सप्रेस मच, या इट कैनॉट अंडरस्टैंड मच, यू कैन से लाइक दैट. मतलब ऐसे बताया जाता है, प्लांट्स दे कैन डेवलप अप टू प्राणमया, एनिमल्स दे कैन डेवलप अप टू ज्ञानमया, and human beings they can develop up to vijnanamaya. And when they associate with God, when they do service with the God, then बस भगवान हमेशा आनंदमय में रहते हैं. हम भगवान से एसोसिएट कर रहे हैं, इसके कारण हम आनंदमय चेतना में जा सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड, चेतना के हिसाब से हमारा हैप्पीनेस का लेवल भी बढ़ता है. एंड यू कैन नेवर सेटल फॉर द सेम हैप्पीनेस ऑलवेज. चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो या पढ़ाई भी हो, मार्क्स भी हो. जैसे आपको हर बार फर्स्ट आ रहा है तो मज़ा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ कंपटीशन में एंटर करना है. लेट से आप बेस्ट एम्प्लॉय है हर साल, मज़ा नहीं आएगा आपको, कुछ एंटरप्रेन्योर बनना है आपको. हाँ, मतलब इट इज नॉट सेम चैलेंज ऑल्सो, हायर चैलेंजेस यू ऑलवेज एस्पायर फॉर. व्हाई? बिकॉज दैट इज आवर नेचर. यू कैन नॉट सेटल फॉर सिंपल थिंग बिकॉज वी आर ऑलरेडी उन्हें, मतलब हम जो ओरिजिनल पोजीशन है ना उससे काफ़ी नीचे है. जब इसको अचीव करेंगे
ये जो फोर्स है ना खींचेगा आपको, नहीं मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, जब तक यहाँ पे एक पॉइंट है, समझ रहे, देयर इज ए पॉइंट वेयर यू विल गेट सेटिस्फैक्शन ऑल्सो. सो दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी, सर्च फॉर हैप्पीनेस. और होता है ना भगवान के लिए सर्च कर रहे हैं, जैसे कोई हिमालय निकल गए, कोई हरिद्वार निकल गए, ऋषिकेश निकल गए, क्या करना चाह रहे हैं वो लोग? Mental satisfaction. दे वांट टू रीच दैट पॉइंट. हाँ, Mental satisfaction. मेंटल सेटिस्फैक्शन मतलब वही चाहे कोई भी सेटिस्फैक्शन हो, मतलब उसको मेंटल में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं. यू वांट टू रीच टू दैट लेवल, राइट? मतलब लेवल क्या है पता नहीं है, बट महसूस होता रहेगा. जैसे होता है ना, आपको अचीवमेंट थोड़ा बहुत आ गया, बट नहीं और कुछ चाहिए, पता नहीं चल रहा है क्या है वो. यू आर इन द सर्च ऑफ दैट, द एंटायर लाइफ इज अबाउट दैट, एक तरह से ये बोल सकते हैं आप. सो हाँ, डेवलप्ड मतलब अनडेवलप्ड कॉन्शियसनेस, मतलब एक प्लांट्स ना इतना ही महसूस कर सकती है, वो ब्लूम कर सकती है या ड्राई हो सकती है, बस इतना ही कर सकती है. इवन 3000 साल 5000 साल रह सकती है, जैसे एक ट्रंक जैसे लगती है, बट फिर भी उसके अंदर लाइफ होती है थोड़ा सा. वी डोंट एक्सपेक्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ. जैसे आप कोई आदमी, आप लोग देखे होंगे डिप्रेस्ड हो, मतलब ऐसे पड़े रहे रूम में. बूढ़े लोग भी बहुत होते हैं, यूथ भी बहुत होते हैं, ऐसे तो देखेंगे तो एक तरह से हाँ ज्यादा मिलते हैं. दे हैव लाइफ, बट क्या आप खुद देखो, आप कभी ऐसे बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहेंगे, राइट? सो वी नेवर एस्पायर फॉर, बिकॉज वी ऑलवेज एस्पायर फॉर हायर कॉन्शियसनेस, नॉट लोअर कॉन्शियसनेस, राइट? सो ये है. नाउ बहुत बार एग्जाम्पल्स दे सकते हैं आप, अरे ट्रीज है हमसे कितना ग्रेट है, वो धूप में भी खड़े हैं, बारिश में भी खड़े हैं तो हमसे तो ज्यादा ग्रेट है, ऐसे बोल सकते हैं. बट द मीनिंग, द रीजन बिहाइंड इट इज दे आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस मिजरी ऑल्सो. समझ रहे? दे डोंट हैव डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, तो हैप्पीनेस महसूस नहीं कर पा रहे. जैसे होता है ना, एक भैंस है, आप मारो जितना भी मारो, उनको तो कुछ लगेगा ही नहीं, वो तो बस इतना मारने के बाद इतना हिलता है, राइट? मैं भैंस जैसे बनना चाहता हूँ, ऐसे तो नहीं है ना, बिकॉज जैसे तुम बोल रहे थे सेंसिटिविटी चाहिए मुझे, इट इज वेरी लेस सेंसिटिविटी, इसलिए कोई आदमी मारेगा भी पता ही नहीं चलेगा. यू आर नॉट सेंसिटिव इनफ टू पीपल ऑल्सो. कभी कभी होता है ना हमारे फ्रेंड्स के साथ, छोटे छोटे चीजों में हो जाती है, क्या बोलते हैं, लड़ाई हो जाती है, बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा भाई मैंने क्या गलत बोल दिया. This sensitivity helps you to improve the relations also. Like that you can say maybe. क्या है trees? हाँ, so trees they have very less undeveloped consciousness. You can say like that. Next. तो यहाँ पे एक important point बताया जा रहा है. If you want to feel happy, what you need to improve? Consciousness. Simple. समझ रहे हैं? If you become a tree मतलब चेतना में आप एक भैंस जैसे बनेगा, या एक बेयर, क्या बोलते हैं बेयर को हिंदी में? बालू. एक बालू जैसे बनेगा. उसका हैप्पीनेस क्या है? सोने में. बट क्या आप इसी हैप्पीनेस को चाहते हैं, या हायर लेवल हैप्पीनेस? आई एम जस्ट टेलिंग जनरली, हायर लेवल हैप्पीनेस को चाहते हैं. सो द हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स. मेन थीम ऑफ दिस टॉपिक इज इट डजंट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, इट डिपेंड्स ऑन इंटरनल कॉन्शियसनेस. जैसे जैसे आप अपना चेतना को इंप्रूव करेंगे, द सेम ऑब्जेक्ट इट मे गिव फ्रस्ट्रेशन टू हिम, मे बी बिकॉज ही इज फ्रॉम मास कम्युनिकेशन, उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, बार बार माइक देखेंगे तो उसको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है. एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, कोई सक्सेसफुल नहीं है तो, बट मुझे यही माइक ना, इट गिव्स मी एनलाइवनमेंट, बिकॉज इट इज लाइक एक्सेस फॉर नॉलेज. फॉर मी इट इज गिविंग मी एक्सेस टू नॉलेज. तो whenever I see this, I'll see that. So same object can give you happiness or distress based on your level of consciousness. समझ रहे हैं? तो आप हैप्पी बनना चाहते हैं, what you need to improve? Consciousness. So how you can improve the consciousness? Two things are enough. भगवद गीता, chanting. दो चीज आप लोग कर ही रहे हर दिन, right? Main point ये है, when you are chanting, whatever time you are giving for chanting, be more conscious. That's what I want. समझ रहे? कीप चैंट विद एन एम. जैसे आप लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्स के पहले पढ़ते हैं विद सम एम, राइट? मतलब मुझे ये सीखना है, नहीं तो कल एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा, राइट? लाइक दैट चैंटिंग में भी कुछ गोल होना चाहिए.
if you have goal, the same amount of time it will multiply. एक तरह सेम अमाउंट ऑफ टाइम में आप जितना अचीव कर सकते हैं उससे बहुत बढ़कर अचीव कर सकते हैं when the goal is there. And I मतलब चाहे वो मैं पढ़ाई में भी हो या स्पिरिचुअलिटी में हो, कुछ भी हो, never settle for lower goals. Simple. Never limit yourself to lower goals. मुझे आपको याद है साई मंदिर में आप दोनों थे, एक बच्चा बता रहा था, हाँ मतलब मुझे इतना मार्क्स आ गया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा. वो बोल रहा था वो सच है तो इसका मतलब अपने आप को लिमिट कर रहा है, या सच नहीं है, दोनों में एक हो सकता है. सो मेरा पॉइंट ये है, नेवर लिमिट योरसेल्फ, बिकॉज वॉट एवर हैप्पीनेस यू कैन अचीव थ्रू दिस बॉडी, इट इज बाउंडलेस. इफ यू सेटल फॉर समथिंग, मतलब होता है ना, देन ग्रोथ इज नॉट देयर. ग्रोथ इज नॉट देयर मतलब लाइफ खत्म हो जाती है. इतना ही लाइफ होगा, उससे ज्यादा बढ़कर लाइफ होगा ही नहीं, तो धीरे धीरे लाइफ खत्म हो जाएगा. राइट? नेवर लूज द लाइफ इन योरसेल्फ. सिंपल. ठीक है? सो मेरा पॉइंट यही है. सो प्लीज वर्क ऑन डेवलपिंग दिस कॉन्शियसनेस internally, which will make you happy. You will see happiness everywhere and you will make others happy. एक तरह से, क्योंकि you are at a higher level of consciousness. कोई आदमी इधर है, उनको देख के पता चल जाएगा उनका प्रॉब्लम क्या है. राइट? जैसे उस समय उसके साथ थोड़ा बहुत मैं बता पाया, देख के पता चल रहा है, तो इट विल बी, आपके लिए तो छोटा चीज है, बट उनके लिए ग्रेट हेल्प है. इज ए लाइफ. राइट? ये तो दूसरे आदमी है, उनका जीवन है. जब आपने कुछ भी आपने उनको बोला उसमें लाने के लिए, और कुछ भी उसने महसूस किया, इट इज लाइक ए बिग टर्न इन हिज लाइफ. समझ रहे हैं? सो आप जितना हैप्पीनेस रहेंगे, मतलब इतना चेतना को डेवलप करेंगे, उतना दूसरों के लाइफ में भी इफेक्ट करेंगे, एंड दिस विल गिव सेटिस्फैक्शन फॉर एवर. वो आदमी ना आपको कभी नहीं भूलेगा. जिस आदमी को आपने चेतना में इंप्रूव करने के लिए मदद किया, दैट पर्सन विल नेवर फॉरगेट यू. एंड मेनी टाइम वी नीड दैट काइंड ऑफ पीपल. मतलब होता है ना, हमने क्या अचीव किया, जैसे आप कितना भी पैसा कमा लिया, कितना भी खर्च कर लिया, एक एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ लाइक 50 years, आपको इतना नहीं लगेगा, मतलब क्या कर लिया मैंने. बट लेट अस से यू आर एबल टू टच समबडीज हार्ट, राइट? डेफिनेटली यू विल फील दैट सेटिस्फैक्शन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आप समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट को? डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस के बारे में आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. ठीक है? The point I want to say here is, something is not real, so it is illusion. So illusions are taking place, maybe let us say, for now we can say that it is taking place in your mind, right? Like, मतलब मान लो एक crude example दे रहा हूँ, एक लड़की है, right? आप बात कर रहे हैं उनसे, right? उनके बातों से आपको happiness मिल रहा है, right? Why you are getting that happiness? Because you have a conception that she is talking with me, means she is approaching me, or she is developing relation with me, or she wants me. Some kind of belief is getting developed, or it is getting nurtured, right? Some kind of belief is there which is getting nurtured inside. Because of that you are able to feel that happiness. This world is not giving happiness only. समझ रहे हैं? It is not giving happiness only. The beliefs are there in the mind. Because of the beliefs we are thinking that it is giving happiness. जैसे मुझे पनीर अच्छा लगता है सबको, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है अभी, क्योंकि मेरा पेट में डाइजेस्ट नहीं होता है वो 1 साल से. तो जैसे मैं पनीर देखता हूँ, भाई पनीर बनाया है इसने, और पनीर और आलू दोनों नहीं खा सकता हूँ, अब मुझे दाल खाना पड़ेगा, ये लगता है. मैं थोड़ा बहुत तो खा लेता हूँ, बट फिर भी जितना ये लोग एंजॉय कर पाते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा. सो इट इज ऑल अबाउट योर बिलीव्स. यहाँ तो फिजिकल लेवल में आ गया, बट नॉर्मली मोस्टली मेंटल लेवल में रहती है बिलीव्स ना. सो to say frankly, even for that moment also you are not getting happiness for that moment also, because of these beliefs in our mind. We are entering into an illusion that I am getting happiness, right? जैसे illusion टूटेगा वो ऑब्जेक्ट हैप्पीनेस देगा ही नहीं, right? So हमारा टारगेट क्या है? let us break free, मतलब let us get out of these illusions and experience something real. Something real means it has to give happiness always, right? ऐसे कभी हैप्पीनेस दिया तो धोखा हो गया ना हमारे साथ. जैसे जियो वाला है, पहले बोल रहा है मैं दे दूंगा, और बाद में बोला, कितना हर्ट हुआ होगा. पीपल गॉट लिटरली फेल्ट दैट दे गॉट चीटेड. होता ना, ये फीलिंग मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है. इफ समबडी थप्पड़ में मारेगा ना, ठीक है चलो,
बट चीटिंग कर दिया ना, वो काफी मुझे बहुत इफेक्ट करता है वो. वी कैनॉट रियली फॉरगिव दैट पर्सन. चाहे वो चीटिंग करने के कारण मैं यूज नहीं करूंगा जियो, मैं यूज नहीं करता हूँ. मतलब वो फीलिंग मुझे अच्छा नहीं लगता है. सब एवरीबडी हैज डिफरेंट थिंग्स. तो मेरा पॉइंट ये है, क्या बोल सकते हैं, दैट इल्यूजन, राइट? वी आर इन दैट इल्यूजन. इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस इल्यूजन, इनके अंदर दिस चैंटिंग एंड भगवद गीता ना, इट हेल्प्स यू ब्रेक फ्री फ्रॉम योर इल्यूजन्स सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट रियल हैप्पीनेस. बस हो गया, रियल हैप्पीनेस आ गया तो यू अंडरस्टूड व्हाट टू गेट. दैट वो झलक रियल एक्सपीरियंस इनको मिला होगा रिसर्च में, समथिंग लाइक दैट. मे बी दैट्स व्हाई ही इज एबल टू टेल दैट, राइट? मतलब एक एक वर्ड में ना काफी मीनिंग छुपा हुआ होता है. दिस वर्ड्स ना, इट इज नॉट रियल हैप्पीनेस. या व्हाट ट्री सेज, आई एम हैप्पी. एवरीबडी सेज. ए पिग, इफ यू आस्क आर यू हैप्पी, या आई एम वेरी हैप्पी. एक किचन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर गर्मी है, किचन में ठंडा है, तो किचन में ऐसे. बट अब उसी किचन में आप जाएंगे, यू कैन नॉट फील हैप्पीनेस. ये तो रह ही नहीं पाएंगे वहां पे, इतना डिजीजेस आ जाएंगे. सो एवरीबडी थिंक्स दैट दे आर हैप्पी. या आई एम हैप्पी. बट when a person is at higher level of consciousness, they can experience whether he is happy or not happy. समझ रहे हैं ना? जितना लेवल है, वो एक पिग है, वो खुश है, उनको पता ही नहीं है हायर लेवल है क्या. जब तक आपको पता नहीं है, जैसे आप लोग देखेंगे, लेट अस से आप मानो 1 हफ्ते लगातार चैंटिंग कर रहे हैं, इसके बाद 1 साल नहीं किया, बट कहीं ना कहीं महसूस होगा भाई वो डेज है ना मेरा बहुत अच्छा है, काफी अच्छा मैंने महसूस किया. दैट यू विल रिमेंबर बिकॉज दैट एक्सपीरियंस विल बी देयर इनसाइड यू. ये मैं बता रहा हूँ. हाँ, उसी मोमेंट में आप खो गया, बस खो गया, नॉलेज में नहीं है, खो गया. मतलब आपको पता है नेक्स्ट मोमेंट में आप मरने वाले हैं, बट फिर भी जैसे गोट ना, क्या है गोट को क्या बोलते हैं, बकरी के बारे में मोस्टली बता रहे हैं यहाँ पे ना. बकरी के सामने दूसरे बकरी को मारा जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है वो बस. बट गाय के सामने दूसरे गाय को मारेंगे ना, गाय हिल जाती है. 8.4 million species are there. In the human being itself is 0.4 million species are there. 0.4 million मतलब 4 लाख. 4 लाख स्पीशीज है, मतलब 4 लाख डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस आर देयर, राइट? तो ऑब्वियसली हम दोनों हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस में डिफरेंस होगा, तो दूसरा स्पीशीज ही बन गया ह्यूमंस में ही, राइट? तो ऐसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ. बट मेनली एक ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मच. हमें पता चला 10 साल के बाद मारा जाएगा, अब से भागेंगे ना, 10 साल तक थोड़ी वेट करेंगे. आज 1 साल के पहले भाग जाते हैं, ऐसे नहीं वेट करें, अब से भागेंगे जब से पता चला. तो लाइक दैट इट इज लाइक. तो ये है, तो सिंपल पॉइंट है. इट इज आज का पॉइंट ये है मेनली द हैप्पीनेस लेवल डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट? एंड बहुत बार आपको पता नहीं चलता है आप हैप्पी नहीं है. यू मे थिंक दैट यू आर हैप्पी बट you are not happy. So how to understand this? When you understand this Gita, reading Gita and chanting ना, एक higher level of experience को आप, higher level of happiness को आप experience करेंगे, right? So that will that way you will understand what is the normal level of happiness you are seeing in a day-to-day life. देखो, समझाना किसी को ही नहीं समझा सकता है. You need to give the experience. Simple. कोई आदमी गुलाब जामुन खाया नहीं कभी जीवन में, मान लो, तो आप कैसे समझाओगे गुलाब जामुन का टेस्ट कैसे होती है? बताओ. यू हैव टू गिव गुलाब जामुन, देन ओनली ही विल टेस्ट इट एंड ही विल एक्सपीरियंस इट एंड दे विल अंडरस्टैंड इट. किसी आदमी के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है तो समझा नहीं सकते आप. यू नीड टू गिव द एक्सपीरियंस. व्हाई वी कॉल यू टू क्लास, व्हाई वी कॉल यू टू फॉर चैंटिंग. हम वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, आपके पास ये होगा ये होगा ये होगा, समझ ही नहीं आएगा क्या मिलने वाले हैं. यू नीड टू एक्सपीरियंस इट ना. चैंटिंग का एक्सपीरियंस मैं बातों में कैसे बता सकता हूँ? जो चैंटिंग के समय आपको एक्सपीरियंस आया, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट अनलेस यू हैव ए प्रीवियस एक्सपीरियंस, और एल्स आई नीड टू गिव दैट एक्सपीरियंस टू यू, राइट? सो इफ यू वांट टू टेल हिम, कुछ भी करके उनको बोलो भाई मेरे साथ एक माला कर दो, सुबह सुबह उठ जाओ, एक बार उनके घर रूम में जाके सुबह उठा के एक माला करा दो, तुम खुद जाके उठा दो, उनके साथ बैठ जाओ, माला करा दो, तो धीरे धीरे महसूस होने लगेगा. इसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो खुद बोलेगा हाँ मैं भी करूंगा. समझ रहे? यू नीड टू गिव द टेस्ट ना. जब टेस्ट होगा तभी तो उनको पता चलेगा, नहीं तो समझा नहीं पाएंगे हम. सो डायरेक्टली यू मे इंट्रोड्यूस दिस गीता और चैंटिंग. गीता से पहले भी हम चैंटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ग्राउंड तैयार होना चाहिए ना. जैसे होता है ना,
खेती करते हैं तो पहले फ्लो करते हैं ना, तो देन यू कैन प्लांट्स विल ग्रो, राइट। तो अभी जो हमारा ना स्टक हो गया पूरा माइंड, ये हैप्पीनेस के कारण जो मटेरियल हैप्पीनेस स्टक हो गया, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, घुसेगा नहीं। बट चैंटिंग ना हिला देती है, आप चैंटिंग में बैठ ही नहीं पाएंगे। कभी कभी ना मोस्टली ऐसा लगता है भाई मैं बैठ नहीं सकता हूँ ज्यादा समय, मैं चैंटिंग नहीं कर पाऊंगा, ऐसे होता है। तो ना हिला देती है, वो तैयार कर रही है ग्राउंड को, ब्रीडिंग ग्राउंड बोलते हैं ना, ब्रीडिंग के लिए वो अनुकूल बनाती है। देन दिस नॉलेज विल कम लाइक ए प्लांट्स, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स जैसे आती है, देन दैट हैप्पीनेस यू विल अंडरस्टैंड, राइट, लाइक दैट इट इज। नॉलेज का अल्टीमेट गोल मतलब व्हाट यू विल थिंक दैट वेयर यू विल रीच, यू विल बिकम द क्रिएटर, दैट इज द एंड पॉइंट। दिस इज मेड बाय ए ह्यूमन, यू कैन रीच हिम ओनली। एप्पल को जितना ज्यादा स्टडी करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा स्टीव जॉब तक पहुंच सकते हैं। बट इफ यू स्टडी द नेचर, you will reach God, and you can never reach God, so it is an unlimited path, so unlimited happiness, that is what, समझ रहे हैं। so the research मतलब भगवान का वाणी है भगवद गीता, you can never understand completely, but the pathway gives you more infinite happiness. But if you study this limited, it will end somewhere, you will lose your interest somewhere, you have to go for shift for another thing, because finally you will reach the creator only. The creator is a normal, become directly the original creator, then you will understand the creation also. स्टीव जॉब्स का क्रिएटर भी तो वही है, but स्टीव जॉब का लिमिटेड क्रिएटर है ना, कितना ही है, ब्रह्मा जी भी तो नहीं है। देखो हाँ, अवर शास्त्र क्रिएटर जो है अगर उनका, हाँ स्टीव जॉब्स का क्रिएटर है। वी डोंट इवन वांट टू बिकम ब्रह्मा आल्सो। ब्रह्मा जी काफी इंटेलिजेंट है, 4 सर है भाई, हमारा एक ही सर है, इतना इंटेलिजेंस है। बट वी वांट टू अप्रोच हिज मास्टर, हिज क्रिएटर, दैट इज व्हाट कृष्णा, दैट इज व्हाई भगवद गीता connects you directly to the original creator. सीधा जाओ ना, इतना रास्ता, लंबा रास्ता जाना क्यों? become the creator directly, समझ रहे हैं? डायरेक्ट वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स, हाँ, multiverse, yes, that is correct, multiverses. So become the creator, then you see what will happen, you will get that satisfaction first, right?